بہت خصوصی مہمان علماء دیوبند کی نشانی اور پہچان حضرت اقدس قاری اللہ داد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ بڑے بزرگ ہمارے مہمانوں میں سے اور بزرگ ہستیوں میں سے قاری صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ ہماری کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی جس میں قاری صاحب چند کلمات نہ فرمائیں، اس لیے ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ قاری صاحب تشریف لائے، اور یہ بڑی بد نصیبی اور محرومی کی بات ہوگی کہ قاری صاحب سے ہم کچھ کلمات نہ سنیں اور قاری صاحب کو موقع نہ دیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت اقدس قاری اللہ داد صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ہماری اس محفل کی مناسبت سے ارشاد فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ تشریف لا رہے ہیں حضرت اقدس قاری اللہ داد صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے جتنے حضرات تشریف فرما ہیں ان کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ جواب اگر مناسب ہو تو دے دیں، میں نے سنا نہیں، میری سماعت کی طرح کمزور ہے۔ سب سے پہلے تو مولانا یحییٰ صاحب اور یہاں کے منتظمین مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نمبر 2 کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے مجھے تو صرف شرکت کے لیے کہا تھا، تقریر کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن کیا کریں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو بغیر پوچھے اور بغیر اس کے اعلان ہو جاتا ہے، تو کہنے درویشہ پر جانے درویشہ ہمیں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا، میرا کچھ مزاج بھی ایسا ہی ہے، اکابرین کی دعائیں اور ان کی شفقتیں طالب علمی دور میں بھی ہوا کرتی تھی، اب بھی ہیں۔ اللہ ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ جو بزرگ اس وقت موجود ہیں، اس وقت میرے تمام ساتھی دنیا سے چلے گئے، صرف 2 استاد باقی ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے، یہ مرکز ہمارا ہے، علمی مرکز ہے، اور میرا دل باغ ہو گیا ہے اس چمن کے کئی رنگا رنگ پھولوں کے دستے کو دیکھ۔ کسی نے کہا بھی ہے کہ جمع ہوئے ہیں چند حسین، جمع ہوئے ہیں چند حسین گرد میری مزار کے، یہ پھول کیسے کھل گئے ہیں، یہ دن تو نہ تھے بہار۔ اگر بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کی آواز آ جائے تو مجھے پتہ چلے گا میں زندہ لوگوں میں بات کر رہا ہوں۔ چند کلمات، اصل میں نے کہیں اور بھی جانا ہے، میں نے ان کے اصرار اور ان کی محبت اور ان کے والد سے بھی میل ملاپ تھا ہمارا، اور ان کے نام بھی ایسے ہیں کہ جن ناموں کے کارنامے الحمدللہ ہم پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کی روشنی۔ تو نام کی بڑی ایک نسبت ہوتی ہے، بلکہ ایک تھوڑا سا ذہن میں آ گیا ہے۔ حضرت مفتی مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، بہت بڑے آدمی تھے، دنیا کے، پاکستان کے، ہندوستان کے بڑے لوگوں میں سے۔ ان کے پاس نہیں، بلکہ وہ میں تھوڑا سا سبقت لسانی ہوگی، مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے، ان کا ایک مرید آیا اور آ کے بڑا
उदासी के आलम में और बड़ा मतलब है कि धीमे अंदाज में बड़ा मायूस कुन लेजा कहने लगा कि हजरत अल्लाह ने पहली पहली बेटी दे दी है। तो हजरत मुफ्ती साहब ने मुबारक दी, कहा कि हदीस में आता है, हमें तो उस वक्त पता नहीं था लेकिन मेरी नजर से अब हदीस गुजरी है कि जिस औरत को सबसे पहले अल्लाह बेटी दे दे तमाम औरतों में अफजल औरत। लोग तो रोने बैठ जाते हैं लेकिन हदीस के लिए मैं आपको नकल कर रहा हूँ अपने बड़ों से सुन। वो भी उसकी भी कैफियत यही थी जो आपकी हमारी होती है। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। तो मुफ्ती साहब ने पूछ लिया कि भाई नाम क्या रखा है? कहने लगा नाम साबरा रखा है। मुफ्ती साहब ने फरमाया बहुत अच्छा नाम। अल्लाह ताला जन्नत में साबिरीन और शाकिरीन को भेजेगा। बहुत बेहतरीन नाम है, बहुत अच्छा नाम है। उसकी हौसला अफजाई की। मेरी तरफ तवज्जो है या मैं ऐसी नारे मार रहा हूँ खामखा? तवज्जो करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी और आपको भी फायदा होगा यकीन। तो हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि कभी कभी बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु नाम जैसा मामला भी कर देता है। ये साबिर और साबरा ये नाम है, इसका मतलब है सबर। कहीं ऐसा न हो इस बच्ची को इब्तला में मुब्तला किया जाए और आज़माइश में डर जाए और ये बेचारी पूरी जिंदगी सबर ही करती रहे। वह नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर इसका नाम शाकरा रख दो तो अल्लाह की नेमत की बारिश होती रहेगी और ये अल्लाह का शुक्र अदा करती रहेगी। तो नाम की निस्बत से मैंने थोड़ा सा आपको झलकी दी है। मैं सबसे पहले जो अभी मैंने आके देखा है मंजर, हुफ़ाज़ को इनामात और ये जो गले में पहने हुए हैं ये भी। अब ये गले में पहनने के कई अंदाज होते हैं। एक तो अंदाज ये होता है कि जब गले में रस्सी डाली जाती है तो उस जानवर को कुर्बानी भी देनी होती है। आप लोगों को पता है अभी बकरीद भी कुछ अरसे के बाद आ ही जाएगी, कई महीनों के बाद। दूसरा ये कि वो पाबंद हो जाता है। ये मैं समझाना चाहता हूँ इन बच्चों को जिनको अल्लाह ने इस नेमत से मालामाल किया है, जो कुरान जिनके सीने में महफूज हो गया है। उनके वालिदैन को भी मुबारक देता हूँ, मुंतज़िमीन को भी, उनको भी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया और आज के बाद फिर कुरान को हाथ नहीं लगाना, तो ऐसा नहीं कहना। बल्कि कुरान का मसला यही है कि जैसे आपके गले में ये छोटा सा गोल्ड मेडल या जो भी है ये डाला गया है, इसका मतलब ये है कि जैसे एक जानवर या कोई जानदार पाबंद हो जाता है, आप कुरान के पाबंद हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से जाएं और वो कुरान पूरे का पूरा मदरसे वालों को दे के चले जाए। बल्कि एक हाफिज बेचारा कुरान पढ़ के भूल गया सारा, कहाँ गया मौलाना याजा से। तो वो एक दिन कहने लगा कि मैं हाफिज तो हुआ था लेकिन कुछ अरसे के बाद मुझे एक जगह याद रही। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा बाकी तो सब नसिया मनसिया हो गया है और एक जुमला आयत का कुछ हिस्सा मुझे याद है, आतिना गदान। इसका मतलब उलमा तो समझ गए होंगे, तलबा भी समझ गए होंगे, लेकिन अवाम उन्नास के लिए एहतियातन बता देता हूँ। इसका माना है कि मेरा टिफन, मेरा खाना गया। लेकिन बस इतना याद है मुझे, बाकी सब इधर उधर। तो इन तलबा को नसीहत करता हूँ कि रोज़ाना कुरान के साथ ताल्लुक़ रखें, कुरान की तिलावत करें। और अगर मैं अवाम के लिए भी एक बात कहता हूँ, अगर एक रकू कुरान का रोज़ाना बिला नागा तिलावत किया जाए तो साल में 3 कुरान मजीद ख़त्म होते हैं। ये मेरा हिसाब आप चेक करके देख भी सकते हैं। तो लेकिन हुफ़ाज़ के लिए ये कि मेरे उस्ताद थे हज़रत कारी फकीह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। वो जन्नतुल बकी में इमाम नाफे के कदमों में उनके दफन हुए हैं। मैं आप हज़रात के लिए तो बहुत बड़ा ये गिफ्ट है और आपके इल्म में, आपके बाप के इल्म में भी नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको।
इमाम नाफे किरात के उस वक़्त के बहुत बड़े इमाम थे। तो हजरत कारी फतेह से अपने दौर के पूरी दुनिया के सबसे बड़े किरात के इमाम थे, मेरे उस्ताद थे। हम जिस जमाने में पढ़ते थे दारुल नानक वाड़े में, तो जब हाफिज हो चुके फिर उनको सुनाने के लिए हमने शुरू किया, तो रोजाना 10 पारे हमारे जिम्मे होते थे। रोजाना 10 पारे हमसे सुनते थे। तकरीबन 1.5 से 2 साल में उनके पास पढ़ता रहा। उसके बाद मैं बुरंगी दारुल में दाखिल हुआ हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये हुफाज भी माशाल्लाह अगर 3 पारे रोज पढ़े तो महीने में 3 कुरान खत्म हो जाएंगे, और एक रकू रोज पढ़े तो साल में 3 कुरान खत्म होते हैं। ये नाज़रे वालों के लिए बता रहा हूँ। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि कुरान मजीद को सीने से लगा के रखना और सीने में महफूज रखना, और फिर उसकी जो बरक़ात हैं, हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन अहमद सनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उबैदुल्लाह साहब उनके बड़े बड़े बेटे का नाम था, बहुत बड़े अहले इल्म थे। वो एक दफ़ा मदरसे में ज़रूरियात ख़त्म हो गई, 3-3 महीने की तनख्वाहें ख़त्म हो गई, मतबख का खर्चा, लंगर का खर्चा ख़त्म हो गया। तो वो उनके पास आए, मुफ्ती साहब के पास, कि हजरत कुछ उस्ताद कम कर देते हैं, कुछ तलबा कम कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा करो, जिस मस्जिद में कुरान मजीद पढ़ाने वाला कोई नहीं, वहाँ एक और हाफिज बैठा हो। उन्होंने कहा हम इनकी तनख्वाह तो दे नहीं सकते, और आप मस्जिद, उन्होंने कहा जितना मैं कहना उतना कर। आप लोग पंजाबी समझते हैं? मतलब उन्होंने कहा जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। खैर उन्होंने वीराने में पता किया, एक मोहल्ले में, वहाँ बच्चे पढ़ाने वाला कोई नहीं था, वहाँ एक हाफिज बैठा दिया। 3 महीने के बाद मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने मुझे ये मदरसा सोतिया मक्का मुकर्रमा में ये बात सुनाई कि बीच में कोई वास्ता नहीं है, तो सनद आ लिया। खैर वो फरमाते हैं कि हमने फिर ये अमल किया। 3 महीने के बाद इतने पैसे आए कि आने वाले 6 महीने के अखराजात भी पूरे हो जाते, इतना आ गया, सुभान अल्लाह कह दो। तो फिर उन्होंने जब मुफ्ती साहब को ये बताया, मुफ्ती मोहम्मद हसन हजरत खान भी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, जिला खुलफा में से थे, बड़े खुलफा में से थे, बड़े आदमी थे। मैंने उनकी ज़ियारत की अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुफ्ती साहब जोश में आके फरमाने लगे कि कुरान की बरकत से अल्लाह ताला काफिरों को भी कुरान की वजह से रिज़्क़ दे रहा है। अब हमारे कुछ यार लोग जो हैं बेचारे, वो कहते हैं जी वो तर्जमे के बगैर पढ़ना बेकार है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, असल को छोड़ के तर्जमे के पीछे भाग रहे हैं। देखिए कुछ फिरके ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि अच्छी बात नहीं है, कुछ लोगों ने अरबी की नमाज छोड़ के अपनी जबानों में तर्जमे किए, वो नसिया मनसिया हो गए। वो हैं तो सही, लेकिन उनके पास है कुछ नहीं। लेकिन आप नमाज अरबी में आपने अदा कर, किसी और जबान में गुंजाइश ही नहीं है, नमाज हो ही नहीं सकती। और नमाज की पहली रकत में, दूसरी रकात में कुरान मजीद ही पढ़ना होगा। हमारे मेरे उस्ताद थे हज़रत मौलाना अब्दुल्ला खासी, हाफिज़ुल हदीस, हाफिज़ुल कुरान। वो अपनी तकरीरों में कहा करते थे, उम्मत मुस्लिमा का हर शख्स मुसलमान वो है हाफिज़ कुरान। ये अजीब बात है, अजीब नुक्ता था। तो हमारा तो दिमाग काम ही नहीं करता था, लेकिन जुर्रत भी नहीं होती थी सवाल करने की। लेकिन एक अरसे के बाद हमारे मदरसे में तशरीफ़ लाए और मेरे साथ बड़ी शफ़क़त फरमाते थे, बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे। बहुत कुछ हमने हासिल किया है उनसे। तो एक दिन मैंने फिर पूछ लिया, मैंने कहा था आप ये जो स्टेज पे कहते हैं उम्मत मुस्लिम का हर आदमी मुसलमान है, वो है हाफिज़ कुरान है, मेरी समझ में भी ये बात नहीं आती। मुझे कहने लगे तू बेवकूफ़, तेरे में अकल नहीं। ये तवज्जो तलब बात है तमाम हज़रात। ज़ाहिर अभी भी हम कम अकल हैं, उस वक़्त भी बेवकूफ़ थे। उस्तादों के आगे तो हम वैसे ही कम अकल अभी भी हैं और पहले भी थे। फिर मुझे कहने लगे कि तेरा बाप हाफिज़ है? मैंने कहा नहीं। लगे तेरी माँ हाफिज़ है? मैंने कहा नहीं।
कहने लगे नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो जब से होश संभाला है हमने उनको नमाज पढ़ते देखा है। उन्होंने कहा सूरत फातिहा के बगैर नमाज होती है? मैंने कहा नहीं होती। उन्होंने कहा सूरत फातिहा के बाद कुल हुवल्लाह या इन्ना आतैना ये तो पढ़ा जाता है। इन्ना आतैना पे भी बात याद आ गई। एक कोर्ट में केस हो गया, 2 मुलजिम पेश हुए। जज ने वो नाम पूछा, जैसे आदत होती है अल्लाह आपको भी ले जाए कभी, हम तो खैर जाते आते रहते हैं। तो जज नाम पूछते, फिर वसीयत पूछते। तो जज ने नाम पूछा कि तेरा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम इखलास है। बाप का नाम उसने कहा अखलाक है। उसने कहा अच्छा सूरत इखलास सुना। उसने सूरत इखलास सुना कि कुल याद थी। वो बात मैं समझाऊंगा दरखास्ती वाली आपको, उसके बाद इजाजत भी दूंगा। तो उसने जब सूरत इखलास सुनाई तो जज ने कहा चल भाई तू करिए, चला गया। दूसरा जो था उसको भी बुलाया कटहरे में, पूछा तेरा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम यासीन है। तो अब सूरत यासीन तो हर किसी को याद होती है, बेचारा रोने लग गया। कहने लगा नाम तो मेरा यासीन है, लेकिन प्यार में मुझे कौसर कहते हैं। तो मैं दरखास्ती साहब की बात आपको सुना रहा था, ये तो बीच में बात आ गई, मैंने सुना डाली। तो मुझे कहने लगे कि तेरा अब्बा जब नमाज पढ़ता है हाफिज नहीं है, लेकिन वो सूरत फातिहा के बाद कुल हुवल्लाह तो पढ़ता है। मैंने कहा हज़रत तो कुल हुवल्लाह भी पढ़ते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील वो भी पढ़ते हैं, और भी चंद सूरतों के मैंने नाम लिए, मैंने कहा वो भी पढ़ते हैं। कहने लगे इतने पे तो हाफिज पूरे न थे। तो जितना उनके सीने में महफूज है उतने के वो हाफिज हैं। इसलिए उम्मत मोहम्मदिया का हर शख्स जो है वो कुरान का हाफिज है। अब इन नौजवानों को मैं नसीहत तो करता, लेकिन क्या करूं, वुसअत दिल तो बहुत है मगर वुसअत सारा कम है, इसलिए तड़पने की तमन्ना कम है। वरना तो वक्त होता। किसी ने कहा है कि हमें तड़पना भी आता है, तड़पाना भी आता है। ऐ सितमगर हमें तड़प कर मर जाना भी आता है। वरना मैं यहाँ मोती बिखेरता जो मैंने उस्तादों से लिए हैं वो आप हजरात को इंशाअल्लाह और तलबा को बहुत नफ़ा होता। मैं आखिर में फिर इन तलबा को, उलमा जो अभी इस साल फारिग हुए हैं, जो मुफ्ती हजरात इस दफ़ा फारिग हो रहे हैं, और प्लस मुंतज़िमीन और साथ साथ वो मुआमिनीन, उन सबको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मौलाना याह्या साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। किसी ने कहा कि अपने दामन में जगह दे के बढ़ा दी इज्जत, अपने दामन में जगह दे के बढ़ा दी इज्जत, वरना इंसाफ से पूछो तो कफे खाक हो। मियाँ खुश रहो तुम, हम दुआ कर चले, फकीरा ना आए सदा कर चले, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।